Yeah, Almas, you were sharing about Cue the Magic. Yeah, Yes. So yesterday, the session was taken by Puram sir, and it was a very good topic, cue the magic. So we had to be alert and find 7 cues and say thank you for that. And since I'm working in a hospital, so one is the ambulance. When I see the ambulance, I say thank you for um, that I'm alive. Then second is thank you for the bones that hold my structure. Thank you for the new day I wake up to. And one is when I pass the ATM. And thank you for the money I have in my account. And the fifth one, sorry, then one is when I go to fill the petrol, then I say thank you for the fuel I have. I can reach anywhere on my bike. And the sixth one, I said, when I see people that those who are not, um, sleeping on the footpath when I come at night. Thank you for the house that shelters me. That is one. And one is for job. A lot of people who do not have job are searching for job. Then thank you for the job I have. I can meet my financial needs. So that is what I had written down. great. Thank you so much, Almas, for sharing. And Almas, keep some water with you when you come for the session so that you can keep sipping. I know you come from the night shift, so it's very tiring and you feel sleepy and groggy at that time. I understand. And thank you so much for your commitment that every single day you have been in the session. And so thank you. So the cue the magic, why is cue the magic important? How is universe helping us by cueing the magic? We are more alert about things happening around us. And how is that going to help us? Many people do not realize and are not grateful when they see certain things, like as I mentioned, there are people like begging on the road, or there are people who are, who do not have house or do not have jobs. So even like in my this thing, when I joined this office few months back, I used to like crib lot of times that this job, a lot of responsibilities. I don't think I'll be able to manage. And then suddenly, like now, that was a shift that I started thanking, I'm enjoying my job. And so there are shifts happening when I say thank you for my job and thank you, I'm enjoying my work. I love the people around me. So Yeah, that is making shifts. yeah, great. So I was asking, why is cue the magic important? And why is universe giving us cues? So the reason is universe is a friend, is always trying to support us. And it's a known fact that the more we pay gratitude, the more abundance we attract in our life. जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत, संपन्न, रिश्तों को मधुर, है ना, अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो यूनिवर्स हमारी उस चीज में हेल्प करता है। वैसे तो हम भूल जाते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो याद रहती है एक आध चीज। Yes. अभी भी जब हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिसेस हैं जो हम रोज कर रहे हैं। अदरवाइज हम असाइनमेंट करते हैं और भूल जाते हैं। यस और नो? Yes. जो असाइनमेंट मिलता है सिर्फ उसी को करते हैं और बाकी सब तो सर के ऊपर से गया, एक दिन करा गया। पर
सब चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? हमारे ग्रैटिट्यूड लेवल पे, कितने डेप्थ से हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और कितना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और कितनी जल्दी अपने गड्ढे भर रहे हैं, है ना? तो यूनिवर्स क्योंकि हमारा शुभ चिंतक है, हमारा फ्रेंड है, वो हमें हेल्प करता है। वो हमें ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्यू द मैजिक को क्या बोलूं, चिन्ह देता है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है रास्ते में कि जिसको देख के हमें याद आ जाए, अरे मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे एम्बुलेंस की बात की, एम्बुलेंस जब सड़क से जाती है, अदरवाइज हमारे दिमाग में क्या आता है? ये पता नहीं। पता नहीं कौन है, भगवान करे ये ठीक हो जाए, है ना? या जो भी ऐसा कुछ भी होता है, या वी ब्लेस दैट पर्सन, है ना? दी अदर थिंग इज कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पुलिस वाले को देख के हमें डर लगता है, जैसे दो चीजें उन्होंने कल बुक में लिखी थी, पर पुलिस वालों के लिए हम ग्रेटफुल भी तो हो सकते हैं ना। और एम्बुलेंस को देख के भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि थैंक गॉड आई एम हेल्दी, है ना? तो इस तरह से वो हमें क्यूज दे रहे हैं, वो हमें कुछ संकेत दे रहे हैं ताकि हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बीइंग आवर फ्रेंड, बीइंग आवर शुभ चिंतक, यूनिवर्स हमें क्यूज देता है। और वो क्यूज हम कब पकड़ पाते हैं? जब हम अलर्ट होते हैं। कहते हैं ना, व्हेन योर विट्स आर शार्पन्ड। इतने दिन से हम वही तो कर रहे हैं ना, अपने विट्स को शार्पन कर रहे हैं ना, अपनी अलर्टनेस को बढ़ा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ शुक्राने कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ उसका उसके शुक्रगुजार हो सकते हैं, है ना? तो अभी वो वैसे याद नहीं रहता है, तो यूनिवर्स हमें क्यूज देता है। और वो जो क्यूज देता है ना, वो स्पेसिफिकली आप ही के लिए होता है। आपके साथ कोई चल रहा हो, उसको नहीं दिखाई देगा वो, आपको अचानक लगेगा। आपने अगर तितली देखी तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, और थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी आईज दैट आई एम एबल टू अप्रिशिएट ऑल दिस। दूसरे बंदे को तितली उड़ती हुई दिखाई भी नहीं देगी, वो कब आई कब उड़ के चली पता भी नहीं चलेगी, बट इट वॉज अ क्यू फॉर यू। और जो भी क्यू आपको मिल रहा है वो आपके लिए है और वो सही है। सो दिस वाज द होल चैप्टर यस्टरडे ना, कि हमको Yes. क्यों मिलते हैं और जो भी क्यों हमें मिल रहा है वो हमारे लिए ही है। किंतु परंतु में मत जाओ कि ये क्यों है या नहीं है। अगर दिख रहा है और आपको लग रहा है वो क्यों है, तो जस्ट पे ग्रैटिट्यूड, या बिकॉज उससे क्या करेंगे, आप अपने ग्रैटिट्यूड को और जोड़ते जाएंगे। जैसे हम सेविंग बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं ना, डिपॉजिट करते रहते हैं कुछ 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 कुछ। हाँ, मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे स्कूल में संचयिता करके एक बैंक आया था। बैंक पता नहीं कौन सा था, स्कीम का नाम था संचयिता, मुझे आज भी याद है। तो हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने अकाउंट खोला था और उसमें था कि आपको रोज कुछ पैसे डालने, एंड उसके बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे हो गए एंड पासबुक में एंट्रीज एंड ऑल। बच्चों को सिखाने के लिए भी था और पैसे जोड़ने भी सिखाने के लिए था। बैंकिंग सिखाने के लिए भी था और बच्चों को पैसे जोड़ने के लिए सिखाने के लिए था। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको भी हम जो ये बुक है वो सिखा रही है ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, एंड उनको इकट्ठा कैसे करना है। सो क्यू द मैजिक वाज वन सच चैप्टर yesterday which was teaching us। तो आज का चैप्टर जो है, वो चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है कि हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं ना लाइफ में, और आने भी हैं। जब तक जिंदगी है तब तक अप्स एंड डाउन्स आने ही हैं। और जो बाची की प्रैक्टिस करता है, उसमें सिर्फ एक क्वालिटी बढ़ जाती है। कोई बताएगा क्या है वो क्वालिटी? वरुण, अलमास?
क्या है वो वे क्वालिटी? एक्सेप्ट द थिंग्स, जो भी चीज आती है ना उसको सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं। सहर्ष एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा सा बाद में आता है, बट यू आर एक्चुअली रीचिंग देयर। सबसे पहले क्या होता है कि जो वो गिरता है ना तो जल्दी उठ जाता है, अपने आप को वापस उठा लेता है। अब वो उठाता कैसे है, उसका इसमें इस आज के चैप्टर में बताया गया कि उसको किस तरह से अपने आप को लिफ्ट करना है, उसमें से कुछ सीख लेकर। जब उसमें से कुछ सीख लेता है, उसको लगता है जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अब जब उसमें से आप सीख ले लेते हो, उन सीखों को आप अपनी जिंदगी में आगे अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाते हो। उसको पकड़ के नहीं बैठते कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, कुछ हुआ जिंदगी में और कितने बरसों तक उसके लिए रोते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, मेरे जिंदगी में ये वाला सिचुएशन आ गया था, है ना। बट जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो चैप्टर है ये सिखाने वाला है कि उस चीज की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, क्योंकि आसान तो नहीं है वो, आसान तो नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल, बट वी आर aspiring to be extraordinary. We are aspiring to be alchemists. We are aspiring to be people who are magical. है ना? So let's read today's chapter. So who's going to read chapter today? Varun, can you read today? Yes. Please go ahead. Day 26. Magically transform mistakes into blessings. हमने जिंदगी में बहुत गलतियां करी हैं। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है, और सही भी है। हम बहुत गलतियां करते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, और उसका भुगतान भी करना ही पड़ता है ना। तो अभी आज हम पढ़ेंगे हमने जो गलतियां की हैं उनको हम अपने वरदानों में कैसे बदल सकते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, भाई गलती तो गलती है। देखते हैं ये किताब क्या सिखाती है। हाँ जी। Turn your wounds into wisdom by Opera Winfrey, B 1954, media personality and businesswoman. ये ना मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये ओफ्रा विनफ्री, और मैं हर बार बोलती हूँ शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी बातें, एंड आई रियली एडमायर हर, वो जैसी भी है, looks wise and all जो भी है, और how she has you know transformed her life, और कहाँ से कहाँ पहुंची है, और कहाँ अपने आप को उसने लाके खड़ा किया है, that is amazing and incredible. Okay, so it says turn your wounds into wisdom. जो भी चोट आपको लगी है उससे कुछ सीख कर समझदार बन जाओ, उससे कुछ सीख लेकर समझदार बन जाओ। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, पर हमें तो बुजुर्गों की बातें पसंद ही नहीं आती। और जब लोग कहते हैं ना आंवले का खाया और बुजुर्गों का बताया, बाद में याद आता है और बहुत सुख देता है, और वो बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जो हम आज पढ़ने वाले हैं हमें ये उन्होंने बताया है जिन्होंने इस चीज को महसूस किया है, अपनी जिंदगी में उतारा है। जब आप दूसरों की सीख से सीख लेते हो ना, तो आप विजडम वाले कहलाते हो, आप वाइज कहलाते हो, है ना। या फिर अपनी ही उस चोट से सीख ले लो तो भी समझदार बन जाओगे। तो आज हम ये सब देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. So every mistake or every situation which is negative, जो हमने पहले पढ़ा था ना, turning negatives into positives, एक पहले चैप्टर पढ़ा हमने।
अभी हम बात करें कि वो नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में था, ठीक है? सी द डिफरेंस, हाँ? वो नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में था जो कोई भी कॉज कर सकता है। एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, आपके आसपास किसी और की वजह से हो सकती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, दे आर आवर ओन मिस्टेक्स, वो हमारी अपनी गलतियां होती हैं। तो आज हम बात करें हमारी गलतियां जो हमने की हैं, वो एक तरह की हमारे लिए वरदान है। कहते हैं ना, एवरी ब्रेकडाउन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ब्रेक थ्रू। कहते हैं ना कि हर एक जो भी प्रॉब्लम है वो अपॉर्चुनिटी का एक रास्ता है। इसी तरह से जो भी मिस्टेक्स हमने की हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। किस टाइप की ब्लेसिंग है? क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने आई है। अगर हमने वो सीख ले ली तो हमारे साथ वो वाली सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि मैंने ये गलती करी तो मुझे ये नुकसान हुआ। तो क्या आप वो गलती दोबारा करोगे? बोलो अलमस, बोलो वरुण, क्या दोबारा करोगे? अगर तुम्हें No, पता चल गया कि मुझे इस गलती से, मैंने ये गलती करी तो मुझे ये नुकसान हुआ, नहीं तो But वो तो yes, दोबारा नहीं करेंगे। sometimes we repeat it. समटाइम वी रिपीट इट ना। बट अदरवाइज अगर आपने उससे सीख ले ली है तो क्या आप रिपीट करोगे? No. हाँ। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एवरी मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग, जो हमें और समझदार और बुद्धिमान बनाती है, ताकि हम अपनी जिंदगी का अच्छी तरह से व्यवहार कर सके। हाँ जी। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The ओके, same पॉज rule. पॉज पॉज पॉज। जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा होता है, अब जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो गिरता है ना? जब वो लिखना शुरू करता है तो उसको एबीसीडी लिखना नहीं आ रहा होता, हाथ पकड़ पकड़ के हम सिखाते हैं। जैसे मेरी मदर कहती है, मैं 7 उल्टा लिखती थी, उन्होंने सिखाया 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 तो मैं सीधा लिखने लग गई ना। तो अगर मैं उल्टा लिख रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं डांटा गया, सिखाया गया, नहीं बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, या थोड़ा सा डांटा भी होगा अगर नहीं लिखना आ रहा होगा तो। बट इवेंचुअली वी नो दैट बच्चा सीख जाएगा। ये अभी तो सीखना शुरू किया है, एक बार में कहाँ आ जाएगा उसको लिखना, या एक बार में साइकिल चलानी कैसे आ जाएगी? खाना बनाना सीख रहे हो तो रोटी गोल नहीं बन रही तो क्या हो गया, एक बार में थोड़ी बन जाएगी। हम उनको माफ कर देते हैं, वी डोंट इवन कंसिडर, माफ तो छोड़ो, हम उसको गलती मानते ही नहीं है कि चल यार सीख रहा है, अभी हो गई तो हो गई। बट वही गलती अगर हम अपनी जिंदगी में करते हैं, वी स्टार्ट बैशिंग आवरसेल्व्स। कितने लोग करते हैं आप में से? कुछ गलती I करी do. और अपने आप को कोसते रहते हो। I do. होता है। हाँ, हाउ कुड आई डू दिस, मैं ऐसे कैसे कर सकता था, या मैं ऐसे कैसे कर सकती थी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ लाइक, मैं तो बिल्कुल डम हूं, मुझे समझ ही नहीं आई मैं कैसे कर सकती थी ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, there was a person with whom I was doing some work, okay, and then उसके बाद वो अपने आप करने लग गए, मैं अपना अपना करने लग गई, but we were good terms पे थे, and this person calls up and tells me ऐसे ऐसे एक कंपनी है जिसमें ना उनको एक डायरेक्टर की जरूरत है, आउटसाइड डायरेक्टर, प्राइवेट डायरेक्टर की। करना कुछ नहीं है बिकॉज कंपनी इज नॉट ऑपरेशनल, बिकॉज एसेट्स उनके बहुत सारे हैं, इसलिए उनकी एजीएम वगैरह सब होती रहती है, तो उनको एक डायरेक्टर चाहिए। करना कुछ नहीं है, मैं भी वहां पर डायरेक्टर हूँ, so you just have to sign whatever I sign
and जो भी resolutions वगैरह होंगे, and you will get some X amount of money. तो तेरे को बना दूं, because I trusted, I trust everybody, so I trusted. I said okay, बना दो. मैं sign वाइन करके सब हो गया. I didn't ask for the documents, कुछ नहीं. जो documents आए मैंने sign करे, trust पे, faith पे मैंने करके दे दिए. Now, after some time, there's a one resolution which comes, which allows that person to withdraw as much money as he wants from the account. And it came to me for signatures. Like a fool, I signed it and sent it. And after some time, I was talking to, I sent a message to this guy, because that guy is जो कंपनी सेक्रेटरी था, वो मुझसे मेरे अकाउंट का डिटेल्स पहले मांग रहा था, तो मैंने भेजे नहीं थे. तो मैंने कहा, डू यू वांट माय अकाउंट डिटेल्स, बिकॉज every quarter they were supposed to transfer some money into my account and all. And that guy said, I will get back to you. So, something alerted me. And then I spoke to a friend of mine who's also company secretary in some other company. He blasted me. He said, who the hell are you? And how did you do this? तुझे कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, तुझे कंपनी के डिटेल्स कुछ पता नहीं, तूने कुछ भी पता करने से पहले और उठा के साइन करके दे दिए. Now, if this person अगर फ्रॉड करता है, चलो नहीं करा उसने, मानते हैं वो नहीं करेगा, बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, you will be behind the bars. And he said, why are you talking to me now? You should have talked to me before signing it. And I was like, what to do now? Anyway, he guided me, send a resignation, whatever was supposed to be. Then I did that. But that was a big mistake I did. And I was just cursing myself. How could you do such a stupid thing? When I was working, I used to vet each and every paper my boss used to sign. Every paper I used to scrutinize. And I didn't even bother to do that for my own self, just because I trusted someone. Trusting is not bad, but being cautious is important. So I learned from that mistake. First, I was bashing myself, but did it help? No. Then once I took all the actions, I sat down and I wrote down. I did this exercise. I wrote down what are the 10 things I've learned from this. And it is settled for me now that anytime anybody is asking you to sign, no matter how much you trust that person, you have to get all the facts and figures in front of you. Unless you are satisfied, don't sign anything. So that was the wisdom I got after this mistake. Now, if I commit this mistake again, I will again face some consequences. But right now, what we are talking about is, जब एक बच्चा मिस्टेक करता है तो हम उसकी परवाह भी नहीं करते, यार छोटा बच्चा है, ये तो सीख रहा है. बट जब हम कुछ कर रहे होते हैं, हम भी तो जिंदगी भर सीख रहे हैं ना यार. एवरी मोमेंट इज टीचिंग अस समथिंग. अगर ये किताब सिखा रही है तो जिंदगी भी सिखा रही है. आज तक जहां हम पहुंचे हैं वो जिंदगी से सीख के पहुंचे हैं, किताबों से सीख के इतना नहीं पहुंचे हम. क्या अलजबरा हमें जिंदगी चलाना सिखा रहा है, या कोई और चीज जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, ज्योग्राफी में पढ़ी, या इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, कुछ हमें जिंदगी जीना सिखा रहा है क्या? हमारी जिंदगी के थपेड़े जो हमने जिंदगी में खाए हैं, उन्होंने हमें वो बनाया है जो हम आज बन गए हैं. उनसे सीख के ही बने हैं. So similarly, whenever we make a mistake, we become very harsh on ourselves. So the same rule applies on us also. We are also learning. So be kind to yourself. Hanji. The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything, and we would not grow any smarter or any wiser.
We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. Okay, now this is very good paragraph. अगर ये हमें समझ आ जाए ना, तो जिंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. Now it says every moment gives us a choice. हमारे पास ना हर मोमेंट में चॉइस होती है कि हमें क्या करना है. अब वो चॉइस जो हम करते हैं, हो सकता है कभी सही हो कभी गलत हो. अब जो गलत है वो एक तरह से मिस्टेक ही हो गई ना. फॉर एग्जाम्पल, yesterday I had to go to गुरुद्वारा because मेरे तरफ से प्रभात फेरी थी. So I had a choice either to skip yesterday's chapter, कि कल सबको छुट्टी दे देती, or I create my replacement and go forward with the flow of it. So I chose to ask Puran to read it. And it so happened that Puran had come to my house and he was staying here. And so he took the session from here. So there was a choice. अब मैं सेशन मिस भी कर सकती थी और सेशन के लिए मैं किसी को चूज भी कर सकती थी, है ना. सिमिलरली हमारी लाइफ में एवरी मोमेंट पे हमारे पास चॉइसेस होती हैं. अब कई बार हम गलत चॉइस कर लेते हैं. करी है ना हम सब ने, क्यों अलमस? Yes. करी है ना वरुण? करी है ना हमने? Yes, we always do. हाँ, तो जब हम गलत चॉइस कर लेते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. अब वो Yeah. कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर रहे होते हैं, है ना. आपने गलत इंसान से शादी कर ली तो हर्ट करता है ना. आपने गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया, आपको नौकरी नहीं पसंद है पर आपने किसी लालच में बोला कि ये वाली नौकरी ठीक लग रही, मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ. आपने चूज किया and that happened to be a wrong choice. And every day and night you are suffering in that job. Right? Similarly, आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही समझ लो. आपने कहीं जाना है, आपने ट्रेन की जगह बस चूज कर लिया. आपको पता भी था कि बस में बहुत टाइम लगने वाला है और आप दो बसें बदलते, बस रास्ते में खराब होगी, आप दो बसें बदलते बदलते रात को पहुंचे जबकि आपको दोपहर को पहुंचना था. कॉन्सिक्वेंस था ना. अब maybe you were supposed to attend something in the evening, you missed it and it is hurting you. Hurting you in a sense में हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपका इंटरव्यू मिस हो गया and it is hurting you. यार मेरी जॉब लगते लगते रह गई. तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं जब हम अपनी चॉइसेस करते हैं तो कई बार हम गलत चॉइस कर लेते हैं and which we consider as a mistake कि यार मैंने गलती कर दी. कितनी बार बोलते हैं ना मैंने गलती कर दी, कहते हैं ना हम, यार ये तो मैंने गलती कर दी. तो गलती कर दी का मतलब क्या है? हमने मिस्टेक कर दी. अब जो मिस्टेक करी है तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है. अब वो जब हर्जाना है, अगर वो आपको तकलीफ देता है और आप उससे कुछ सीख लेते हो तो यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. और जैसे भी वरुण ने पहले बोला कि हम एक ही गलती कई बार बार करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज हमने उससे कुछ सीखा नहीं. और दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही तो जिंदगी में आएगा. अगर आप मिस्टेक अट्रैक्ट कर रहे हो तो और मिस्टेक्स आएंगी, है ना. और तब तक आती रहेंगी जब तक आप उससे सीख नहीं लेते हो. अभी अपनी जिंदगी में देखो, सिर्फ इसको पढ़ के छोड़ मत दो. लुक एट योर लाइफ. ऐसी कौन सी गलती है जो आपने बार बार की है और हर बार आपको तकलीफ हुई है?
पर आपने अभी तक सीख नहीं ली उससे, और आप बार बार कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। Yes. तो मेरे एक एक्स कुलीग है, every time he joins the company, he takes on lots of responsibility, बड़ा sincere बंदा, and every time he's asked to leave the job, every time. 4 jobs तो मुझे मालूम है जब से मैं उनको जानती हूँ, that he had to leave the job, and he gives 100%, 100% से भी ज्यादा देते हैं। कुछ तो है ना, कुछ गलती वो कर रहे हैं जो वो नहीं समझ पा रहे कि वो क्या गलती कर रहे हैं कि हर बार उनको जॉब से जाने के लिए बोला जाता है। We get into that thing ना कि these people are like that, हम उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये these people don't deserve me, तभी मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाती है। We don't look into ourselves कि ऐसी कौन सी मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ कि मुझे हर बार सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, मुझे हर बार क्यों नौकरी से निकाला जा रहा है, सीनियर लेवल, GM, डायरेक्टर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, and every time he's been asked to leave. 4 jobs since the time I have met him. अब ये क्या है, मिस्टेक से सीखा नहीं है ना, और जब तक सीखोगे नहीं वही तकलीफ आपको बार बार मिली, जब तक कि वो तकलीफ आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाए। जब वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मेरी गलती क्या है और मुझे इससे क्या सीखना था। जब तक नहीं सीखोगे बार बार हर्ट होगे, चाहे वो आपके क्या कहते हैं उसको, अफेयर्स हैं, चाहे आपके वो दिल के मामले हैं, कुछ भी हो, वो आपको बार बार, जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मेरा ही क्यों हर बार ब्रेकअप हो जाता है, सब मेरा ही दिल क्यों तोड़ते हैं। अरे भाई सोचो क्यों तोड़ते हैं, सीखो उसमें से क्यों तोड़ते हैं, rather than blaming the other person, because the choices was yours, चॉइस आपकी थी, अब वो आपने गलत चॉइस करी है तो ढूंढो क्या गलती करी है। या हाँ जी, Let's consider the scenario. To learn from the mistake, we have first to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we are speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them. They had a radar gun, so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. हाँ ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस वालों से तो हम लोग ये आंख में चोली खेलते ही खेलते रहते हैं। एवरी डे यू विल सी दिस ऑन द रोड। Yes. आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, आप स्पीड अप कर रहे हैं, आप रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, आप रॉन्ग साइड से टर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो रास्ता बंद होता है कि इधर से नहीं जाना है, आप उधर से जा रहे हैं, ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ, इतने हाई ट्रैफिक में लोग ऑपोजिट साइड से आ रहे होते हैं, दे जस्ट नॉट, मतलब स्केर्ड, उनको डर ही नहीं लगता है। बट अब ये बताओ, दिस इज द चॉइस दे हैव मेड, है ना। और अगर सामने से पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको, तो वो पुलिस वाले को गालियां देंगे, ये मामू कहाँ खड़ा था, मुझे तो दिखाई नहीं, अचानक कहाँ से निकल के आ गया, कहते हैं ना ऐसे, ये मामू कहाँ से निकल के आ गया, पता नहीं कहाँ छुपे रहते हैं, इनको तो अपने पैसे बनाने होते हैं सिर्फ, यही सब बोलते हैं ना हम। Right? बट बट अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये गलती मेरी है, वो कहीं से भी निकल के आया, वो तो अपनी जॉब कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कब लेंगे। हम तो दूसरों के ऊपर थोपते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को। यहाँ पर भी हम उसी को ब्लेम कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं,
अचानक, बस इनको तो पैसे बनाने होते हैं, चालान करना है बस इनको। इनका तो रोज का ना टारगेट होता है, इनको अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, इसलिए जो भी मिल जाए धर लो उसको, यही बोलते हैं ना हम। दिस इज द कॉमन कॉन्वर्सेशन। आप लोग कुछ अलग बोलते हो क्या? No, हम लोग यही वही, बोलते हैं। Something similar to this only, right? yes, Maybe the wordings are different, maybe the language is different. yes, Yeah, but कहते यही है। The first thing you need to do is, अगर आपको अपनी गलतियों से कुछ सीखना है तो पहले ये मानना पड़ेगा ये मेरी गलती है। एंड इट्स अ बिग थिंग। हाँ, सब लोग नहीं मानते, सब लोग नहीं मानते आज भी। correct, 60, 70, 80 साल की उम्र में भी नहीं मानते। बच्चे तो क्या ही मानेंगे, बिकॉज हमें सिखाया ही क्या है बचपन से, गलती तुम्हारी है ही नहीं, गलती हमेशा सामने वाले की या किसी और की है। मैं तो बहुत छोटा सा बात बोलती हूँ, जब बच्चा छोटा छोटा चलना चलना सीखता और गिर जाता है तो उनके घर में कोई ना कोई बड़ा जो भी होता है वो कहता है, हाथ नीचे वाली जमीन को मार के, हाथ तेरी गलती थोड़ी है, ये देख जमीन ने तेरे को गिराया था। करते हैं ना, अनजाने में हम उसकी वायरिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट्स द पर्सन अदर देन यू who's to be blamed. ये छोटी छोटी चीजें ना हम इनग्रेन कर रहे हैं उन बच्चों की सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमें तो सिखाया ही गया है कि हमारी गलती तो कभी होती ही नहीं है। बट इन दिस, इफ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू ओन योर मिस्टेक्स, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हाँ जी, पढ़े। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences for our mistake, but we did not learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. हाँ, तो वो तो है ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो वही करना है ना। जब आपने किसी और को ब्लेम किया तो तकलीफ तो हो ही रही है ना यार। अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपका चालान हुआ, तकलीफ तो हुई ना। पैसे जेब से जा रहे हैं तो तकलीफ तो हुई ना। yes, तो आप उसको गालियां दे रहे हो या आप उसको भला बुला कह रहे हो और आप उसको ब्लेम कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग? अट्रैक्टिंग मोर सच सिचुएशंस इन योर लाइफ। बार बार वैसी ही मिस्टेक्स, उससे बड़ी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जो आप करते चले जाओगे। या mhm, You are human. You will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. देखो कितना अच्छे से बोला, वी आर ह्यूमन बीइंग्स and we will always make mistakes. Yeah, and it's one of the most beautiful things. Why is it beautiful things? Because ये हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, ये हमें कुछ सीखने का मौका देती है, इसलिए they are beautiful. Yeah. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for so many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? हाँ भाई, बताओ चॉइस क्या है आपकी? क्या क्या Blessings. क्या प्रेफरेंस है? Blessings. मिस्टेक्स या ब्लेसिंग्स? Blessings होनी चाहिए, yes. या तो वेरी सिंपल, जब आप अपनी मिस्टेक्स में से ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू करोगे and you will write gratitudes for them, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में? ब्लेसिंग्स, because you are writing gratitudes for them, you're feeling that gratitude and writing it. और अगर आप gratitude नहीं लिखोगे, आप मिस्टेक्स के ऊपर you're feeling hurt, you're again feeling something which is negative, so you're attracting that.
चॉइस तो आप ही की है और हर बार ही आपके पास है चॉइस, आपको क्या चूज करना है। Today, think about a mistake you have made in your life. It does not matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts you. Think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you, and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone. No. And because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. ओके, तो आज आपको क्या करना है, आपने कोई ऐसी एक मिस्टेक के बारे में सोचना है जो आपने की है, जो आप अभी भी उससे कुछ सीख नहीं ले पाए हो और आज भी आपको वो हर्ट करती है कि हाउ कुड आई डू दिस, मैंने ऐसा कैसे किया, है ना। जैसे मान लो आपने किसी से गुस्से में बात करी और बहुत आपके बहुत प्रिय था वो, बट आप इन अ रेज ऑफ एंगर आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि आपका रिश्ता वैसा नहीं रहा, यू आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद दैट पर्सन नाउ, या तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हुए ना। एंड जब उससे बात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो चुभन होती है मन में, वो दुख आता है, यार उस दिन अगर गुस्सा नहीं किया होता, मैंने ढंग से बात कर ली होती, टोन डाउन कर लिया होता अपने आप को, तो वो उतना नाराज नहीं होता कि मुझसे बात ही करना छोड़ दिया उसने, है ना। ऐसे कुछ भी मिस्टेक हो सकती है जो आपने की हो, जिसकी आपको तकलीफ आज भी महसूस होती हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपने आज जो क्या करना है वो अभी अगले स्टेप में बताने वाले हैं। पर जो उस टाइम पे आपने चॉइस किया, जो आपने डिसीजन उस मोमेंट पे लिया, जिससे आपने कुछ सीखा नहीं, तभी वो आपको आज भी चुभन देता है, आज भी दुख देता है। अगर आप उसके बारे में, क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं उसको ब्लेम कर रहे हो या खुद को ब्लेम कर रहे हो, पर वो ब्लेमिंग चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, हाँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस। आपने कुछ किया और आप अपने आप को बैशिंग कर रहे हो, अपने आप को पीट रहे हो, दुनिया भर की अपने आप को गालियां दे रहे हो कि तूने ऐसे कर कैसे लिया, हाउ कुड यू डू दिस। थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रख सकता था अपने ऊपर, थोड़ा सा कंट्रोल रख लेता। मुझे याद है हमारे पड़ोस में ना, आईआईटी में हम जब रहते थे, तो ऊपर नीचे फैमिलीज में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया किस बात पे कि पॉट होती है ना, पहले पुराने जमाने में वो जो बुनी हुई होती थी, खाट बोलते हैं उसको, वो ने ऐसी जगह रख दी कि दूसरे बंदे को पसंद नहीं आ रहा था, उसकी वजह से झगड़ा हुआ। एंड हाथापाई हुई, मतलब जो भी हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, बाय चांस दैट पर्सन्स son hit that guy and that guy died. That guy died. अब वो तो उनकी फैमिली तो बर्बाद हो गई, वो बंदा मर गया। इसकी फैमिली में भी देखो, दिस गाय वेंट फॉर 14 years imprisonment. अब इस टाइम पे अगर वो अपने आप को बैशिंग करता रहे कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे गुस्सा आया ही क्यों उस टाइम, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख लेता, कौन सी बड़ी बात थी, वैसे ही उठा के एक साइड में रख देते, तो दैट इज अबाउट बैशिंग योरसेल्फ। आप अपने को गलत बता रहे हो। नाउ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट इट वाज माय रेज, इट वाज माय एंगर व्हिच कॉज्ड इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। देखो, एक तो होता है कि आपने अपने आप को बैशिंग करना शुरू किया, एक होता है कि उसने लड़ाई शुरू की थी, उसने वहां पे खड़ी क्यों की थी। अगर उसने वहां नहीं रखी होती तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। दैट इज लाइक ब्लेमिंग द अदर पर्सन। दोनों चीजों समझो, एक ब्लेम कर रहा है कि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, एक ये कह रहा है कि मुझे इतना गुस्सा आया, और गुस्सा तो आना ही था ना, गुस्सा तो आना ही था ना, तो मैंने उसको कर दिया ऐसे। और उसके बाद अपने आप को बोल रहा है, यार मुझे गुस्सा क्यों आया, इतना इतना बड़ा नुकसान कर लिया मैंने अपना,
बस वो बैशिंग में ही है, उससे आगे नहीं बढ़ा. But this chapter is going to teach us how to go beyond that. इन दोनों सिचुएशंस में ये नॉर्मल है, ये कॉमन है. Either we are blaming other or we are bashing ourselves. This is very common. है कि नहीं? करते हैं ना वैसे? Yes. या वरुण करते हैं ना ऐसे? Yes. या तो दूसरे को ब्लेम कर देते हैं सिचुएशन के लिए, या अपने आप को ब्लेम करके अपने आप को प्रताड़ित करते रहते हैं. बट दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड दैट. इट्स टॉकिंग अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, फिर उसको ध्यान से देखना शुरू करते हो कि इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैंने क्या सीखा इसमें से. तो वो जब आप करना लगते हो, that is what is learning. That will take you forward in your life. बाकी की दोनों चीजें जो आप कर रहे हो, वो आपको आगे नहीं बढ़ा रहा कहीं भी जिंदगी में. वो तो दलदल है जिसमें आप फंसे हो, बार बार उसी को घुमाए जा रहे हो, उसमें फंसते जा रहे हो. बट ये वो स्टेप है जो आपको आगे लेके जाएगा, आपको ग्रोथ देगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करेगा. वो कैसे करना है, लेट्स रीड. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? ओके, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी मिस्टेक जिसके ऊपर आज आपने काम करना है, सबसे पहले तो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने क्या किया था. अभी हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, जो अभी तक आपने जिसको हील नहीं किया है. ठीक है, तो कोई भी एक मिस्टेक ले लो. वैसे तो हम रोज ही करते हैं, कोई रिसेंट ही मिल जाएगी आपको, आज कल में कुछ किया होगा. तो आपने ऐसी एक मिस्टेक को पहले आइडेंटिफाई करना है. फिर आपने अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. What did I learn from this mistake? इस गलती से मैंने क्या सीखा? जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने वो ब्लाइंडली साइन करके भेज दिया, एंड मेरे को ये एक कहीं ना कहीं मुझे डर लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इससे किसी का कुछ नुकसान हो सकता है ना. तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो मिस्टेक से क्या महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलती की है और मुझे क्या करना चाहिए. अब आगे से कभी भी बिना पढ़े, बिना अंडरस्टैंड किए हुए कुछ भी साइन नहीं करना चाहिए. डोंट हैव ब्लाइंड फेथ. डोंट हैव ब्लाइंड फेथ. ये नहीं कि ट्रस्ट नहीं करो लोगों को, ट्रस्ट करो, बट बी कॉशियस. Yeah, so that was the learning I had taken from that mistake. अब आप देखिए आपने जो मिस्टेक करी उससे आपने क्या सीखा है. आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई ना कोई मिस्टेक ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपने उसके ऊपर काम करना है. हाँ जी. What are the good things that came out of the mistake? The good thing which came out of the mistake आपने लिखनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड थिंग यह है कि मैं I got alarmed by it. I took actions. I spoke to that person. I sent letters and I withdrew from that. So these were the good things that happened. और मुझे नॉलेज बढ़ गई इन सब चीजों के बारे में कि मुझे क्या क्या करना चाहिए. और मुझे ये समझ आ गई, आगे से कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले मुझे अपने फ्रेंड से चेक करना चाहिए कि इज इट ओके टू गो अहेड विद दिस, है ना. तो मतलब ये गुड चीजें मैंने सीखी इसमें से, है ना. और फिर मैं बच गई. हो सकता है वो इंसान भी बच गया हो सकता है वो कुछ फंस सकता था किसी चीज में, वो फंस गया वो बच गया हो सकता है कंपनी बच गई हो. तो क्या क्या चीजें हो सकती है जो मैंने इस चीज से सीखी और जो अच्छा हुआ. और सबसे बड़ी बात, लोग पहचाने जाते हैं कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अपना नहीं है. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग विच आई लर्नड, है ना. सो इस तरह से आपने देखना है कि आपने क्या क्या सीखा. आगे एक एग्जाम्पल भी देंगे, वो इस तरह से करना है. हाँ जी, पढ़े. The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learned from it. And no matter what the mistake,
There are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take an example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Okay, pause. I'm तो आपने जो भी मिस्टेक्स हैं उसमें से गुड थिंग्स जो ढूंढनी है उनको लिखना है. राइट इट इन योर जर्नल. आई वुड नॉट सजेस्ट राइटिंग इट ऑन कंप्यूटर. अगर आपको वही अच्छा लगता तो वही कर लीजिए, बट I would prefer if you could write it on, put a pen to the paper and write it, because it has a different reason why we prefer that आप पेन और पेंसिल से लिखें, पेन और पेपर पे लिखें, because जब आप पेन और पेपर से लिखते हैं तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में वो सब रजिस्टर होता है, राइट, इंप्रेशन पड़ता है उसका. जब आप टाइप करते हो तो नहीं होता है, बिकॉज आपके हाथ से वो कैनेटिक एनर्जी जो है फ्लो होके आपके ब्रेन में जाती है. इसलिए तो इट सेज कि अगर वो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया. अगर आप देखो, हेलमेट लगा के अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो प्रोटेक्ट किसको कर रहे हो? अपने सर को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, अपने आप को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हो. पर हम तो बड़े हीरो बन के घूमते हैं, हमने तो हेलमेट पहनना ही नहीं है, हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, लड़कियों को कैसे इंप्रेस करेंगे, है ना. और जब पुलिस वाला पकड़ लेता है तो पुलिस वाले को 100 गाली देते हैं. बट व्हाट इज पुलिस वाला डूइंग? इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, ताकि आपके सर पे हेलमेट रहे. कल को बाई चांस अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो आप प्रोटेक्टेड रहें. दैट इज व्हाट ही इज डूइंग. बट हम ऐसे देखते ही नहीं है. पर आज मौका है कि कोई भी सिचुएशन जो भी रही हो उसमें आपने ऐसे ही ढूंढना है कि उसमें गुड क्या है, किसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. अभी आप जब ये पॉइंट्स पढ़ोगे आपको हैरानी होगी कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, और जबकि वो सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए. हाँ जी, पढ़े. I'm grateful to the police because if I'm honest with myself, I was thinking about other things and I was not concentrating on the road. हाँ, I'm grateful to जब the आप police. जब आप गाड़ी चलाते टाइम कुछ और सोच रहे होते हो, आपका फोकस रोड पे नहीं होता है, तो आपको नहीं पता चलता अचानक कौन सी गाड़ी कहाँ से आ गई. क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. आपको अपने राइट, लेफ्ट, आगे सब जगह देखते हुए चलना होता है. पर अगर आप कुछ और सोचते हुए चल रहे हो, इसका मतलब आप फोकस होके नहीं गाड़ी चला रहे हो, कॉन्सेंट्रेट होके नहीं चला रहे हो. तो आपने जैसे ही मिस्टेक, कई बार होता है ना ऐसे, आप कुछ सोच रहे हो, आपको पता नहीं चला आप रेड लाइट क्रॉस कर गए. होता है ऐसे, Yeah. आप अपने ध्यान में हो और आपको पता ही नहीं चला कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी है. तो उस टाइम पे अगर उसने चालान किया तो क्यों किया? बिकॉज ही इज लेटिंग यू नो दैट यू आर नॉट बीइंग concentrated on what you're doing, which could lead to a fatal accident. Anji, next. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding up with a tire that needed to be replaced. I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Okay, अब ये क्या है? अलार्म. अलार्म हमारे लिए क्या आता है कि भैया जहां जहां बोला है वो कैमरास लगे ना, उससे पहले स्लो डाउन कर दो ताकि कैमरे में ना हो, है ना. हमारे लिए यही अलार्म है. बट what it is saying is that it's an alarm for you to realize कि आप स्पीड अप करते हो तो स्पीड अप करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा स्पीड लिमिट में चलो. तो ये देखो, दिस इज ऑल हाउ यू आर लुकिंग एट इट. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ब्लेम यू विल फाइंड मैनी, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स यू विल फाइंड मैनी टू. बट ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग से फायदा होने वाला है. क्योंकि ब्लेसिंग्स विल
attract more blessings into your life. Thank you. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. कितने लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं? Yes, very true. कितने लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं कि अगर आप स्पीड अप कर रहे हो तो अपनी लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हो और सड़क पे और जो लोग हैं उनकी लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हो. Yes, पर इस चीज का रियलाइजेशन नहीं. हम तो अपने टशन में गाड़ी चलाते हैं, लाउड म्यूजिक चलाया और टशन में गाड़ी चला रहे हैं, और जब चालान हो रहा है तो गालियां पुलिस वाले को दे रहे हैं. अरे लुक एट दीज थिंग्स. ही इज ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू. ही इज ट्राइंग टू सेव यू. ही इज ट्राइंग टू सेव द लाइव्स ऑन द रोड. जब आप इस तरह से देखना शुरू करोगे ना अपनी मिस्टेक्स के बारे में भी, बहुत कुछ नजर आएगा. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा. हाँ जी. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. हाँ, जब ये दूसरों को देखते हैं, आप कहीं पे जा रहे हो, सडनली एक गाड़ी जूम करके आपके पास से निकलती है और आपका बैलेंस हिल जाता है और आप गालियां देते हो. कैसे गाड़ी चला रहे, मारेगा किसी को या मरेगा, कहते हैं ना. yes, हर बार कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसा? yes, ये क्या तरीके, देखो कैसे गाड़ी चला रहा है, या तो मरेगा या मारेगा. तो दैट अप्लाइज टू यू आल्सो व्हेन यू आर स्पीडिंग अप. तो वो रियलाइजेशन जो है, वो पुलिस वाले ने जब आपका चालान किया तो आपको ये बताया कि ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, और लोग जो सड़क पे चल रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है. सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ जी. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I'm हमने grateful ना to the police. हमने ना इस चीज का रियलाइजेशन तभी किया था जब लॉकडाउन हुआ था. ये देखो सब जने घर के अंदर है, देखो पुलिस वाले बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के कर रहे हैं. तभी हमने थालियां बजाई थी बस उनके लिए. अदरवाइज तो गालियां ही देते हैं. थाली एक ही बार बजी है, गाली रोज रोज होती है. बट yes, अभी मौका है कि आप ये देखो कि these people are serving us. होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, दे आर ऑन ड्यूटी. वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं होते हैं, वो सड़कों पे होते हैं. क्यों? बिकॉज दे वांट अस टू बी सेफ. yes, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. ओके. I'm grateful. आप में से कितने लोगों ने रास्ते पे कभी रोड एक्सीडेंट देखा है मैंने देखा. और बहुत दिमाग खराब हुआ देख के? Yes. उस yes, सिचुएशन को देख के दिल दहल जाता है और दिमाग खराब हो जाता है. पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और दिमाग में वही घूमता रहता है. होता है ऐसा? Yes. yes, सोचो पुलिस वालों का, वो बार बार ऐसी चीजें देखते हैं सड़क पे, और उनके मन में आता है ना कि किसी तरह से हम ये ना होने दें, इसको रोक लें. कभी नहीं, बट सोचा? ऐसा नहीं है. अब मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन पुलिस पीपल कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन कि उसको मैं कुछ फर्स्ट एड दे दूं या मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊं, मैंने तो उनको देखा उसके जेब से पर्स उठाते हुए, उसकी गले से चेन निकालते हुए, उसका मोबाइल चुराते हुए. वरुण, we are talking about looking for blessings. No, I'm just sharing my thought that just came to my mind. I get that. What I'm trying to say is, हमारे लिए ना सबसे पहले जो नेगेटिव है उसको पकड़ना कितना आसान होता है. He could be one of such policemen who chose at that moment to do that. Right. That is his mistake, right? yes, But Right. otherwise पुलिस वालों को आप सोचो ना, दिन में कितनी बार या हफ्ते में कितनी बार वो ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं, और जब वो ऐसा देखते हैं तो उनके दिल में भी आता है, यार मेरे घर का भी कोई बच्चा हो सकता है, मेरी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है. तो ही इज ट्राइंग टू protect everybody by, you know,
asking you to follow these traffic rules, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन, क्योंकि वो दिल दहलाने वाली सिचुएशंस देख चुके हैं. Are you getting that? So Yes. so that is what they are trying to do. तो क्या हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, हम तो यही देखते हैं कि वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं. हम तो यही देखते हैं कि वो किस तरह से चालान काट रहे हैं, किस तरह से भाषा बोल रहे हैं, कैसे गाली दे के बात करते हैं, कैसे अपना डंडा चलाने की कोशिश करते हैं हर जगह, पर हम ये नहीं सोचते इंटेंशन क्या है. So today we I are, have, yes, sorry. I have faced that situation. Actually, वसीम का ही ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था when they were speeding up actually. तभी हाँ. तो वो अंडर एज था, below 18. He had just finished his 10th exam, and the three friends, they were traveling on bike हाँ. without no license, nothing. 10th standard student. तो ट्रिपल सीट जा रहे थे और the police started chasing them. और वो पुलिस से बचने के चक्कर में जो रास्ते से आ रहे थे वहाँ पे, मतलब दोनों साइड वॉल, एक छोटा गेट है और फुटपाथ था हाईवे को कनेक्ट करते हुए, एंड दीज पीपल रेज द बाइक एंड दे वेंट एंड डैश द बस. तो इसमें वसीम का काफी नुकसान हुआ था, मतलब ही वाज हर्ट वेरी बैडली, हेड पे इंजरी आया था उसको. एंड ये मतलब मिस्टेक करते हैं, बट दे लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. यस. Yeah. So the sooner they learn, the better it is for them, right? If they don't learn it, they'll keep repeating the mistake, right? यस. And जितना बार आप रिपीट करेंगे उतनी बार आपकी पेन बढ़ती जाएगी, जब तक कि इतनी पेन ना हो जाए कि आप हार के मान ही जाओ कि मेरी गलती थी और आप उससे कुछ सीख ले लो. तो इट इज बेटर ना कि हम पहली बार में ही सीख जाएं. या हाँ जी, पढ़े. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing in my life. या जब I would आप strongly जब आप इस तरह से देखना शुरू करेंगे ना, तो देखो एक सिंपल सा इंसिडेंट है, ये पुलिस वाले ने उसको स्पीडिंग के लिए पकड़ा और उसका चालान किया, पर उसके पीछे कितने सारे ब्लेसिंग्स उसको दिखाई दिए. अगर इस तरह से हम अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करें, तो हम अपनी उस मिस्टेक से सीखेंगे ही ना. यस. पर अगर हम सिर्फ ब्लेम करेंगे तो नहीं सीखेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ भाई मैंने स्पीड किया और ये स्पीड करने से ये हो सकता था, जिसको बचाने के लिए पुलिस वाले ने मेरे को रोका, है ना. और उसका हर्जाना भरना पड़ रहा मुझे, ताकि मुझे याद रहे स्पीड अप किया था तो मैंने इतने इतने 100 रुपए का या इतने 1000 रुपए का चालान भी भरा था, है ना. तो कहीं ना कहीं these things are helping you to learn something and move forward. Yeah. हाँ जी. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you will still feel bad about. And in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? हाँ, तो आज आपने क्या करना है, कोई भी ऐसी मिस्टेक जो आपको आज भी परेशान करती है, कि आपने वो मिस्टेक करी, आप अपने आप को आज भी उसके लिए ब्लेम करते हो, तो ब्लेम करने के बजाय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लुक फॉर द ब्लेसिंग्स इन दैट. आपने क्या कुछ सीखा है उस एक मिस्टेक से, बिकॉज उस मिस्टेक से जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, जब आप ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, you will attract more blessings into your life. And कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया डिविडेंड नहीं देती है ना. तो आपने आज ये एक प्रैक्टिस करनी है. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you.
and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one mistake you made in your life. Find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistakes? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके तो आज का बड़ा सिंपल है. आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स तो करना ही करना है. आपने एक मिस्टेक ढूंढनी है जो आपको आज भी परेशान करती है और उसके बारे में आपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं और वो लिखने में हेल्प करेंगे आपको ये दो क्वेश्चंस. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट एंड व्हाट आर द थिंग्स that came out of, what are the good things that came out of this mistake. एंड सोने से पहले आपने अपना रॉक, मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है. तो ये ना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आदत नहीं है ना हमें, क्योंकि अभी टुवर्ड्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ द बुक. तो हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा मुश्किल है ना. तो वो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है आज, और आज का चैप्टर अगर आप नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे. ये एक हर्डल की तरह रह जाएगा आपकी जिंदगी में. तो आज का चैप्टर जरूर कीजिएगा. टेक आउट सम टाइम बिकॉज सी इट इज योर लाइफ. अपनी लाइफ के लिए हम काम कर रहे हैं ना. अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो अगर हम अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे तो उतना ही बेटर है. क्योंकि जब लोग हमें कुछ बताते हैं ना, इसको ऐसे कर लो, तू जिंदगी में ये कर ले, वो कर ले, तो वो रजिस्टर नहीं होता है. हम अगर करते भी हैं तो आधे मन से करते हैं. पर अगर हम खुद कुछ ढूंढते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं तो वो सीख जिंदगी भर की होती है कि नहीं. जब हम अपने आप कुछ सीख लेते हैं जिंदगी से तो वो जिंदगी भर की होती है. और जब हम कोई हमें और बताता है तो वो कभी रहती है, कभी नहीं रहती है. तो जो सीख आपने अपनी जिंदगी में सीखी है अपनी गलतियों से, उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना है. ठीक है. तो दैट इज अबाउट टुडेज चैप्टर. थोड़ा लंबा खिंच गया. सो tomorrow's chapter is my favorite chapter once again. So let's do the prayer. Hold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Yeah, so one more thing. जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जहां आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो ना किसी चीज के लिए, यार मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मेरे जैसा कोई स्टूपिड नहीं, मेरे जैसा कोई बेवकूफ नहीं, पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड. तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो गालियां दे रहे हैं, बैशिंग अप कर रहे हैं, बीटिंग कर रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएगा. It will help you to overcome that because you will be able to find कि ये मैंने गलती करी माना. It is my, I take responsibility कि मेरी गलती है. अब इस गलती से मैंने क्या सीखा. जब आप वो सीख पढ़ोगे ना कि मैंने ये इसमें से क्या क्या अच्छा निकल के आया और मैंने क्या सीखा, that will free you from that. वो जो आप पकड़ के बैठे हो ना अपने बारे में, वो गलत एक चीज धारणा बना के कि मैंने ही ऐसा करा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया मैंने, मैं ऐसी क्यों हूँ या मैं ऐसा क्यों हूँ. जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे ना, इट विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम दैट. आपको उसमें से छुटकारा मिल जाएगा वो अपने आप को बैशिंग करने से. सो दैट इज एन एडिशनल bonus you will get when you do this today's chapter, right? Okay, guys, thank you so much, and I will see you tomorrow morning. Take care. Bye bye. Great Bye. day.